ایک صحابی حضور کے پاس آئے، ایک وظیفہ آپ مجھ سے لے لیں، آخر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر تنگ دستی کی شکایت کہ آقا بہت تنگ دستی ہے۔ اس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا بھی، اپنی کتاب میں لکھا۔ وہ صحابی آئے اور کہا کہ بہت بے برکتی ہوتی ہے گھر میں، کچھ بھی نہیں بچتا اور تنگی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو زمینوں کے اور آسمانوں کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، صبح بھی پڑھتے ہیں اور شام میں بھی پڑھتے ہیں؟ اس صحابی نے کہا آقا عنایت فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ ہم تو ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں و بحمدہ استغفر اللہ، ایک ٹکڑا ہم نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو فجر میں یا مغرب میں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو لکھا ہے کہ وہ صحابی تقریباً 1 مہینے کے بعد پھر کچھ شکایت لے کر کے آئے حضور کے پاس۔ شکایت لینے پہنچانے والوں میں آپ کھڑے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور پوچھا آپ کیا شکایت ہے؟ پھر دوسری شکایت لے کر کے آئے۔ اس صحابی نے کہا کہ حضور اب کی شکایت یہ ہے کہ مال اتنا ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ میرے پاس، اتنا میرے پاس ہو گیا ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ میں اس چیز کی قلت کا، اس چیز کی قلت کی شکایت لے آیا ہوں کہ جگہ کی تنگی ہے۔ یہ اندازہ کریں اس تسبیح کا اثر اس لیے ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل طور پر اتباع اور پیروی کرتے تھے، اور اس کے بعد وہ وظیفہ انہیں کام آئے۔ آپ بھی کریں، لیکن ساتھ میں میری دعوت یہ ہوگی جو بے برکتی لانے والے کام ہیں ان کو پہلے ختم کرو، ان کو پہلے ختم کرو۔ بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بچوں سے جھگڑا ہو گیا، دوستوں سے جھگڑا ہو گیا، لوگ کہتے ہیں جلدی لاؤ ٹینشن زیادہ ہے، سگریٹ ٹھوکیں، جلدی آؤ کہیں جا کر کے شراب کی ایک بوتل لگا کے آ جائے۔ نہیں میرے عزیزو، یہ علاج نہیں ہے، مزید بیماری پر بیماریاں ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں آپ کو بتاؤں، کھجلی جب ہوتی ہے نا، کھجانے میں اچھا لگتا ہے لیکن کھجانا علاج نہیں ہے۔ کھجاؤ گے تو زخم پیدا ہوگا، وہ اچھا تو لگتا ہے سب کو پتا ہے، لیکن تیزی سے تم کھجاؤ گے تو وہاں زخم ہو جائے گا۔ کھجلی کا علاج کھجانے سے نہیں ہے، اس کی دوا کرو۔ تمہارے ڈپریشن کا علاج، تمہارے ٹینشن کا علاج شراب میں، نشے میں نہیں ہے، اس کی دوا کرو۔ اس کی دوا کیا ہے؟ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیے۔ سچ بتا رہا ہوں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، قید خانے میں جو لوگ زندگیاں گزارے ہوں گے یا جیل سے آئے ہوئے لوگوں کو بتاؤ، اللہ نہ کرے کسی کو یہ حالت آئے، مگر میں نے محسوس کیا ہر طرح کے کرمنل جمع ہوئے، وہاں پر بھی وہ اپنی قید کی تنہائی کو ختم کرنے کے لیے نشہ کا استعمال۔ آپ پوچھتے ہو کہ کہاں سے آتا ہے؟ سب آتا ہے، سب آتا ہے، پہنچانے والے بھی بڑے لوگ، پکڑنے والے بھی بڑے لوگ، کیس کرنے والے بھی یہی لوگ، چھڑانے والے بھی یہی لوگ، ساری چیزیں جانتے ہیں۔ میں اس میں تفصیلات میں نہیں جانتا، لیکن ایک میں جانتا ہوں، ہم جیسے لوگ جو ان جیسے لوگوں کے بیچ میں پلے بڑھے اور اچانک لے جا کر کے ان کے درمیان بٹھا دیا گیا تو کیا حالت ہوتی ہے؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ ہمارا علاج کیا تھا؟ پہلے میں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم تو دنیا بدل کے آ گئے، کن لوگوں میں بیٹھ گئے، کیسے لوگوں میں بیٹھ گئے۔ لیکن یقین پکا ہو تو یاد رکھنا، کتوں کو بھی زبان آ جاتی ہے، عشق آ جاتا ہے، کیسے بھی لوگ ہوں۔ اس کے بعد جب گھبراہٹ ہوتی، اعلیٰ حضرت کا یہی شعر پڑھتا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج ہے، جب یاد آ گئے ہم سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا شروع کرتے تو دل ایسا کرتا، دل مچلنے لگتا، اور پھر ایک حوصلہ اور ایک ہمت ایسی آتی، لوگ دیکھتے، اور جن لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھا تھا جو صبح سے شام تک پڑے رہتے، رمضان آیا تو ہم نے دیکھا پورا قرآن وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہو کر کے سماعت کر رہے ہیں۔ یہ ہماری برکت نہیں، یہ ہماری محنت نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ حضور سے لو لگاؤ تو اللہ سارا زمانہ تمہارے حوالے کر ہی دے گا، ماحول بن جائے گا۔ اے نوجوانوں، اٹھو اور اپنے قوم کے اندر اصلاح پیدا کرو۔ آج تمہیں جس طرح انگلی اٹھا کر کے لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ نشہ خور ہے، یاد رکھنا یہ تمہیں نہیں تانا دیا جا رہا ہے، یہ سیدھے رسول اللہ کی غلامی پر تانا دیا جا رہا ہے۔ تمہارا نام میرے مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، اس کا تم بھرم رکھو، خیال رکھو،
तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत हुजूर की बारगाह पाक में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउमीदी और नाम से मायूसी दुनिया में शैतान पहचाने लाता है, जाते इससे बंदे भटक हो। जाते हैं। तुम्हारे हाथ में बहक शराब जाते की हैं, बोतल तौबा की जेब नहीं तौफीक देती, नहीं ताश के पत्ते इसीलिए जेब मेरा नहीं मौला देते। फरमाता, अना तुम इंदा नशे के ज़न्नी अड्डे पर अब्दी रात बी। ना गुजारो, रब ताला फरमाता, बार और मेरा क्लब बंदा में मेरे डांस बारे में करते जैसा हुए गुमान ये करता है, मैं उसके मुजरे साथ करने वैसा के लिए सलूक तुम्हें करता नहीं पैदा तुम किया कैसे गया। गुमान ऐ करते हो? नौजवानों वो सबको पकड़ उठो, करेगा, तुम्हारे आदमी हाथ में तो मार अल्लाह का डालेगा। कलाम होना वो गफ्फार चाहिए, है, तुम्हारी गफ्फार जुबान है, पर मेरे गफ्फार मुस्तफा है, के नगमे लेकिन बाद में वो हो। सत्तार तुम्हारी है, रातें वो क्लब में रहमान भी नहीं, है, रहीम भी है। किसी मस्जिद में या अगर किसी शेख रब के तबारक कदमों में व तआला गुजरनी हर चाहिए। चीज पर पकड़ फिर करता देखो तो हमारा तो जीना ही इनकलाब नहीं ऐसा है। आएगा, इनकलाब इतने गुनाह ऐसा हो चुके आएगा। और वो आज ताला फरमाता मैंने वसीअत महसूस रहमती किया कुल्ल है, शै। जो शुरू मेरी में मैंने रहमत ने जुमले हर चीज को घेर बताए, रखा। शुरू में अल्लाह तकरीर रब्बुल में, इज्जत जिसको ये मेहमान लोगों को बना माफ करके करने का स्वागतम किया जा रहा ज्यादा है, फरमाता है। आगे पीछे और पुलिस जानते की हैं आप, नफरियां लगा गुनाह दी जब गई, आम होते हैं, अरे वही जुब्बे मैं आपको वाला, अपने वही घर की पगड़ी बात वाला, बता दूं। सारी मेरे घर में चीजें आप जिससे 4 सारी दिन के दुनिया मेहमान बना लड़ के रही आए। थी उसको मेहमान कभी बनाया खिड़की तोड़ इज्जत रहे, के कभी साथ। दरवाजा तो तोड़ फिर एक बात समझ कभी में हमारे आती घर है, के क्या बर्तन चीज पटक है जो रहे हैं, कभी इन्हें फर्शी गर्विदा उठा कर देती है, तब तक वापस फिर बर्दाश्त। बुलाती है। आपको निकाल कर दुनिया बाहर तो करनी है, सिर्फ मेहमान और नहीं, सिर्फ ये भला ताकत होगी। और दौलत की घर जुबान सारा जानती उजाड़ रहा है, है। इसके एक अलावा चीज पर इनके छोड़ पास दिया कुछ जाए, नहीं। दो चीज पर छोड़ लेकिन दिया जाए। हम इंसानों की महसूस फितरत करते है, हैं इंसानों की दुनिया फितरत के है। तमाम लेकिन हालात रब्बे को अल्लाह कायनात अपनी एक दिन कायनात में पलट में सकता हम है, बंदों बल्कि को एक उतारा है, मिनट में हमने पलट क्या सकता नहीं है। किया। अपने आज गुनाहों अगर से उसकी बारिश जमीन नहीं को लाल है, कर दिया। रब तबारक व उसकी तआला के लिए नाफरमानी से नामुमकिन हमने और इस मुहाल कायनात नहीं है, वो को अच्छा है तो अभी बारिश कर दे, वो कड़ी धूप में बारिश कर दे और कड़ी बारिश के अंदर धूप ला दे। इसलिए आज के हालात से परेशान ना होना, क्या अब क्या होगा, हमारा कोई कायद नहीं, हमारा कोई लीडर नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, मुसलमान बिखरे हुए हैं। कभी मायूस ना होना, ऐसे सूखों में हमने कई गुलशन खिलते हुए देखे हैं। जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ परचम उठाए थे, रब ताला ने उनकी नस्लों में ही आशिकाने मुस्तफा भी पैदा किए हैं। वो दिन दूर नहीं जो मैं कहा था वही कहता हूँ, कंप्लीट नहीं, बाकी आप खुद ही समझ लेंगे। हालात जैसे भी हो, ये कुछ देर की खामोशी है। जैसे भी हो, जैसे भी हो, कुछ देर की बात है। हर अंधेरे के बाद उजाला आएगा, हर तारीकी के बाद सवेरा आएगा। इसलिए आज अगर चांद को गहन लगा है इस जमात का, तो चांद का गहन जब छपता है तो फिर वो अपने आबो ताब के साथ चमकता है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा, उठो, अगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौरों के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। आपको पता है हमारी हालत आज जो है, ये तुम्हारा उमड़ना, गिरना, पड़ना हमें देखने के लिए, ये सब किसकी बुनियाद पर है, किसकी निस्बत से है? आप यहाँ सियासी लोगों को भी पूछ सकते हैं, अंदर से भी बाहर से भी हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, हम किसी जगह के नेता भी नहीं, किसी पार्लियामेंट के मेंबर भी नहीं, हम कोई ऐसी बड़ी जमात भी नहीं पालते कि लोगों को 500-500 पहले दे करके तैयार कर ले। नहीं मेरे अजीजों, मैं भी कार में आ रहा था, पूछ रहा था ये सारे दीवाने कहाँ आसमान से उतर रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, ये हुजूम कहाँ से आ रहा है? फिर दिल ये कहता है ये सारे लोगों का दिल अल्लाह ने एक तरफ फेरा है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ईमान वालों की 3 अलामतें बताई गई। हर जगह पहली अलामत यह है कि ईमान वाले बेशक वही हैं 100 किलोमीटर का बगैर कि जब खाने उनके पीने सामने से अल्लाह का जिक्र हो तो उनका दिल मचल जाए, दूसरा दिन हो कि तीसरा दिन हो, अल्लाह का नाम आते ही उनका दिल खुश हो जाए, यह ईमान की अलामत है। सोया तो नींद से और दूसरी अलामत रब ताला फरमाता है मौजूद है उसका साजो सामान। जब उनके सामने अल्लाह की आयतें तिलावत की जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, बताओ वो आयतें सुनना पसंद करते हैं। इसी से आप अंदाजा करें हमारे अंदर अब ईमान कितना है। कहते यार रसूल अल्लाह के नाम पर खुशी होती है, क्योंकि वो जानते थे सहरा का अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों का ये तरीका रहा और आज भी है कि जैसी अजान की आवाज आती अल्लाह का नाम है सब खामोश हो जाते हैं फरमाते हैं और उसका जवाब भी देने लगते थे। जैसे उस मुसाफिर को खुशी हुई और यही माहौल ईमान की अलामत है कि जिन लोगों में ईमान बाकी है वो अल्लाह के नाम से खुश हो जाते हैं और खामोश हो जाते हैं, पलट करके आता है। और ईमान ना हो तो उन्हें अल्लाह के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज वो अल्लाह की आयतें सुन करके अपना ईमान ज्यादा कर लेते हैं। इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके ऊपर कुरान की आयतें, अल्लाह की आयतें तिलावत की जाएं तो उनका ईमान बढ़ जाता हो। चौथे पारे की आयत ये भी आप ट्राई करके देखें
जिन्होंने बुराई की, कुरान की आयतें तिलावत की जाए तो दिल लगता है कि नहीं यानी लगता गुनाह है? किया, अगर दिल लगता है कुरान सुनने का तो इसका मतलब है कि ईमान है। वमन यगफिरु दुनूब इल्ला और कुरान सुनने का दिल नहीं करता, भाग जाते हैं, तो निफाक है दिल के अंदर, ईमान कामिल नहीं है। वलम युसिर्रु अला मा उसकी सबसे बड़ी अलामत आपको रमजान मुबारक में देखने को वो जिस मिलती चीज है। से तौबा करके आ रहे हैं, हाफिज कुरान इसरार करके अल्लाह की आयतें तिलावत कर रहा होता है। कितने लोग हैं जिनको कुरान सुनने की रग़बत पैदा होती है और तिलावत पर उनका ईमान बढ़ता हो। होना यही चाहिए मेरे अजीजों के जैसे अल्लाह की आयतें तिलावत की जा रही है, तुम्हारा दिल लगने लग जाए, दिल लगने लग जाए, ये ईमान अंदर है तुम्हारे पास। वरना घंटों गाने सुनते रह जाते हैं, ताखीर हो सकती है, मेरे घर पर दूसरों के डायलॉग लाने की जरूरत पेश आई, फिल्मी नगमे मेरी बीवी को न जाने क्या क्या चीजें घंटों तक सुनते रह जाते हैं। तिजारत पे चले गए, जो दोस्त बल्कि देखिए बाकी सारे नगमे एक जगह पर अल्लाह का कलाम आने वाले की मुसलमानों के लिए वो मिसालें कुरान पाक सुनते ही अगर ईमान बढ़ने लगता है और शौक बढ़ता है करते थे अपने दोस्त तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर ईमान मौजूद है। तीसरी चीज ईमान की अलामत, और रब ताला फरमाता व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जिसके सीने में ईमान होता है वो सिर्फ अपने रब पर भरोसा करते हैं, हाथ पकड़ लिया, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते के हैं। मदीने की रहने आज मुझे यही अर्ज करना है, अपना हाथ तो छुड़ा लिया, लेकिन ईमान मारकर रोने जब किसी के दिल में हो तो वो खौफ और खतर से आजाद हो जाता है। दोस्त भाई ये फरमाया गया कि दो खौफ अल्लाह ताला एक दिल में नहीं डालता, एहसास हो गया कि मैं बहुत बड़ी दो खौफ एक दिल में नहीं भाई और आते, मेरे दोस्त की या तो दुनिया का खौफ बस जाएगा या अल्लाह का खौफ बसेगा। और उसकी बीवी का मैं ऐसा नहीं होता कि अल्लाह का खौफ भी है और दुनिया का खौफ भी है, दो खौफ जमा नहीं होंगे। ये सहाबी भी रोने इसलिए एक ही खौफ को जगह दो। अगर अल्लाह का खौफ है तो अल्लाह दुनिया के खौफ से आजाद कर देता है। अब इस और यही फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम अपने दोस्त को वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के हो जाते हैं, चीज किसी के अल्लाह के दोस्त, क्या करूं, उनको किसी भी बात का खौफ नहीं होता, डर नहीं होता, और न ही किसी बात का रंज और गम होता है। ये कब होता है? और जब अल्लाह की जात पर कामिल भरोसा हो जाए, कामिल यकीन हो जाए। उठने फिरने की ये भरोसे के मुतालिक चंद बातें अर्ज करता हूँ। अल्लाह की जात पर तवक्कुल कैसा? खातून ने बताया कुछ लोग क्या मामला पेश इसका अलग गलत माना समझ लेते हैं। तवक्कुल का मतलब ये है कि सब छोड़ छाड़ करके बैठ जाओ, अल्लाह ही सब करने वाला है। इसका नाम भी तवक्कुल नहीं है। मेरी औरत के साथ ऐसा अल्लाह की जात पर यकीन और तवक्कुल का मतलब असबाब का सहारा लेना है, भूलना, लेकिन यकीन उसकी जात से रखना। अब उनको दिल में तो बहुत तकलीफ ऐसा नहीं है कि घर में बैठ करके आप ये सोचें कि बच्चा हो जाएगा, हुजूर पाक की बारगाह में अकेले बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला है, तो सिर्फ जबह का लफ्ज़ आता है। लेकिन उसने जो असबाब बनाया है उन असबाब का सहारा लेना। यानी चेहरा चमकता तुम घर में होगा। बैठ करके ये सोचते रहो रोटी आएगी मुंह में चली जाएगी, नहीं। बहरहाल रोटी को गुजरने के लिए जितने असबाब की जरूरत है उन असबाब का सहारा लेना है। हाथ पैर चलाओ, फिर अल्लाह की जात पर भरोसा करो। मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। एक साहबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, मेरे पास एक ऊँटनी है, उस ऊँटनी को खंबे से बांध करके अल्लाह पर भरोसा करूं या उसको खुला छोड़ कर, क्योंकि खुला छोड़ने से ऊँटनी वापस नहीं आती। एक बार वो हाथ से जाए तो भटक जाती है। ऊंट के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उसकी रस्सी को खंबे से बांधो और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला बीमार हो गए, बुखार आया, सर्दी है, सर में दर्द है, पेट में दर्द है, जरूर अल्लाह शाफी काफी है, यकीन है हमें के साथ कि अल्लाह ही शिफा देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीमार होकर बिस्तर पर सोए रहे, मुझे अल्लाह पर भरोसा है वही शिफा देगा। वो शिफा देगा, लेकिन दवा तुम्हें लेनी होगी। मुअज़्ज़ज़ थे, उनकी लोग इज्जत करते दवा लो और फिर ये कहो दवा तो जरिया है, हकीकत में शिफा अल्लाह की तरफ से। ये तवक्कुल है, इसको कहते हैं तवक्कुल और यकीन। देखो जैसे आज के हालात में बहुत सारे लोग दूसरे दर्जे का तवक्कुल करके बैठे हुए हैं। उम्रा की तुम एहराम जब हम या उलमा बयान करते हैं कुछ नहीं होगा, अल्लाह के ऊपर सब छोड़ दो, तो सारे लोग शायद सब छोड़ करके बैठे हुए हैं। चाहे वो नबी पाक की इज्जत का मामला है, चाहे इस्लाम की बात आए, चाहे कुरान की बात आए, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अल्लाह की जात पर भरोसा है, जो होना है वहीं से होगा। ऐसा नहीं। अगर अल्लाह की जात पर भरोसे का यही मतलब होता तो 313 निहत्ते सहाबा कभी बदर के मैदान में नहीं आते। वो मदीने में बैठ करके ही कहते अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह फरिश्तों को उतारेगा। नहीं, हाथ पैर चलाओ और फिर अल्लाह की जात पर भरोसा रखो।
مسئلہ یہ ہے کہ ہاتھ صرف پیر اپنے کعبہ تمہارے سلامت ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان میں اترو. یہاں تک کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں, سید المعصومین ہیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود 160 کلومیٹر پیدل چل کر کے رمضان کے موقع پر بدر کے میدان میں آئے, اور سب تیاریاں ہو جانے کے بعد رات کے وقت بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری جانب سے جو کچھ کرنا تھا ہم سب کر چکے, اب کامیابی دینا تیری ذات, اب تیری شان پر ہے, اور اگر مولا اب بھی ہمیں کامیابی نہ ملی تو اس روئے زمین پر کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے گا. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا مدینے میں بھی کر سکتے تھے, یہی دعا اپنے گھر میں بیٹھ کر کے بھی کر سکتے تھے, اپنی مسجد میں بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توکل اور یقین یہ سکھایا ہے کہ پہلے عمل کرو اور پھر رب کی ذات پر بھروسہ رکھو. عزیزان گرامی وقار, آج اسی کی ضرورت ہے کہ جو یہ سوچ کر کے بیٹھا ہے کہ سب کچھ ویسی ہی ہو جائے گا. قرآن میں مولا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت نہیں بدلتی. خود تمہیں بدلنے کی فکر نہ ہو اور تم سوچتے ہو کہ دعاؤں سے ہی سب کچھ ہو جائے. ایک بزرگ کے بارے میں ایسی بطور مزاح یہ بیان کیا گیا تھا کہ ان کی کھیتی باڑی تھی اور بڑے شریف مولانا صاحب تھے, کھیتی باڑی کرتے تھے اور بیٹھے رہتے تھے. ایک گدھا آتا تھا فصلیں چر جاتا تھا اور یہ تسبیح پڑھتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. گدھا چلا جائے, گدھا چلا جائے, گدھا چلا جائے, تسبیح 100 بار. گدھا کہاں سے جاتا, وہ فصلیں خوب چرتا تھا اور چلا جاتا تھا, مارکیٹ میں اور ان کی تسبیح ختم نہیں ہوتی تھی. گدھے کو بددعائیں بھی دے رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں بیٹھی جگہ. اللہ تعالیٰ کچھ کر دے, اس گدھا چلا جائے, یہ گدھا چلا. کچھ نوجوان تھے وہ دیکھتے تھے روزانہ کہ مولانا صاحب بڑے شریف ہیں, روزانہ صرف تسبیح سے گدھے کو بھگا رہے, تسبیح سے گدھے کو بھگا رہے. آدھی فصل تو وہ روز کھا گیا تھا گدھا. ان نوجوانوں کو رحم آیا, وہ کچھ ڈنڈے لے کر کے میدان آ گئے. 4-5 دن کے بعد ڈنڈے لے کر کے آئے اور اس کے بعد پھر اس کھیتی میں چرنے والے گدھے کو جو تڑ لگایا تو گدھا چیختے ہوئے جو بھاگا زخمی ہو کر پھر کبھی نہیں آیا. اور وہ نوجوانوں نے آ کر کے کہا مولانا صاحب آپ کی تسبیح اپنی جگہ پر, لیکن ڈنڈے سے جو توکل ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر. یعنی اگر آپ بیٹھی ہوئی جگہ پر ہی یہ سوچتے رہے کہ ہماری کھیتی کوئی نہ چرے اور صرف ہم تسبیح پڑھ کر کے سب بگا دیں, ایسا نہیں ہے. اللہ نے تمہیں قوت فکر بھی دیا ہے, قوت عمل بھی دیا ہے, پہلے اس کا استعمال کرو اور پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اسی کو اقبال نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا. کسی بھی قوم کے اوپر زوال جو آتا ہے وہ مفلوج ہونے کے بعد کچھ کرنا نہیں ہے, بیٹھے ہوئے کھانا ہے اور بیٹھے ہوئے سب نئے نئے کرشمے دیکھنا ہے, نئے نئے اچھمبے دیکھنا ہے بیٹھ کر کے. نہیں میرے عزیز, اسلام نے تمہیں عمل کے میدان میں اتارا ہے, عمل کے میدان میں بے خوف و خطر اترو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھو. آج ان نوجوانوں سے بھی میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کر کے توکل کر رہے ہوں یا توکل کا غلط معنی اخذ کر رہے ہوں, کہ ہمیں کیا ضرورت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ ہے. رزاق وہی ہے, رزق دے گا. وہ جب چونٹیوں کو رزق دیتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں دے گا؟ یقیناً تم اشرف المخلوقات تو تمہیں بھی رزق دے گا, لیکن حکم اس کا یہ ہے کہ تلاش کے لیے نکلو, تلاش کے لیے نکلو. ایک جگہ بیٹھ کر کے انتظار کرنا یہ نہیں ہے توکل. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلو. ایک دن حضرت فاطمہ کے گھر گئے, حسنین کریمین چھوٹے تھے, بھوکے تھے, رو رہے تھے. حضرت فاطمہ سے پوچھا کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں, گھر میں کوئی چیز نہیں, فاقہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ نہ گھبرا, تیرا باپ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے لائے گا اور تیرے بچوں کو کھلائے. خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں نکلے اور چلتے چلتے نواحِ مدینہ میں, مدینے کے خارج میں ایک باغیچہ تھا, اس میں چلے گئے.
बगीचे के मालिक से कहा क्या मैं तेरे बगीचे में मजदूरी करूं, तो मुझे उसकी कुछ उजरत देगा। बगीचे के मालिक ने मंजूरी भरी, कहा कि ठीक है उनके साथ जो मैं तैयार हूँ, मजदूरी कर सकते हो। देखो मेरे बगीचे के दरख्तों को पानी सींचना, पानी पिलाना, तुम एक डोल पानी भर करके डालोगे, मैं 2 खजूरें उजरत में दूंगा। आपस में कुएं से खींच करके एक डोल पानी भरना और एक दरख्त पर डालना, और उसकी उजरत पर सिर्फ 2 खजूरें। नबी रहमत सैयदुल आलमीन ताहा व यासीन, हम गरीबों के आका, जिनके हाथ में मौला ने सारे खजानों की कुंजियां के निशान आ चुके, उन्होंने 2 खजूरों की उजरत पर यह काम को तैयार कबूल कर लिया। गए खुद अपने हाथ से कुएं में डोल डालते हैं, पानी भरते, कंधों से उठाते और ले जाकर के दरख्त को पानी डाल के आते। इस पर एक ढोल पर वो बगीचे का मालिक 2 खजूरें देता। अगर निशान की बात 3 डोल मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाले, कुरान में फरमाया 6 खजूरें उनके दी। पूरे चेहरे पर, चौथा डोल जैसे ही कुएं में डाले, रस्सी टूट गई, और बाज लोग डोल गिर गया कुएं के अंदर, रस्सी अलग हो गई। जो कुरान में इस बात पर वो बगीचे का मालिक इतना गुस्से में आया कि हाथ उठाकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा। जो सहाबा कहा तुम्हें काम का तरीका नहीं मालूम। की सिफत आई उस पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त की नहीं फरमाया क्या ना हबीबुल्लाह, और आपस में मैं अल्लाह का हबीब हूँ, ये नहीं फरमाया। तुमने पलट तो नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अमल के मैदान में रिज़्क़े हलाल के लिए दूसरों के लिए रस्सी खींचते हम रहे देख रहे हैं, और उससे कहते हाँ अपनों के लिए ये मुझसे रस्सी टूट गई, मैं कोशिश करता हूँ बना करके दी। सलाम कलाम नहीं, किसी तरह से उसकी रस्सी बना करके दिया और 6 खजूरें लेकर वापस लौट के आए। साथ अपने घर आए, बघाड़ी जा रही, सैयदा उनके ज़हरा के घर बच्चे रो रहे थे, 6 खजूरें चल रहे हैं, खुशी खुशी ला करके खिलाया। उलट करके रख दिया। उस चीज का कोई गम नहीं कि मैं मजदूरी करके आया, इस चीज का कोई गम नहीं कि बगीचे के मालिक ने हाथ उठाया, नहीं मेरे घर में हलाल 6 खजूरें आई। कोई रू रियायत और नहीं जब करते थे, हसनैन करीमैन को खिलाया, ईमान नहीं है। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अमल दर्स उम्मत है, अबू आमिर राहिब उम्मत के लिए दर्स है। पूरे मदीने वाले उस बगीचे के मालिक को हुजूर के जाते ही अंदर से बेचैनी और बेकरारी शुरू हुई कि इतना हसीन और जमील नौजवान मेरे पास आया और काम करते करते उससे अगर रस्सी टूट गई थी तो मैंने हाथ उठा दिया, गलत किया। और उस बेचैनी में मौजूद था, बेचैनी में चलो कोई साहब वहां से गुजर रहे थे, मदीने वाले साहब उनसे का साथ छोड़कर रोते हुए उस बगीचे के मालिक को पूछा क्या बात है, बेकरारी किस बात की? उसने कहा एक ऐसा देखो मैं आ गया, मर्द यहाँ पर आया था, बड़ा हसीन और जमील, बड़ी खातिर, और उसने रस्सी से मेरे बगीचे में डोल पानी भर भर करके सींचा, लेकिन उससे रस्सी टूट गई तो मैंने हाथ उठाया, उसके बाद से मुझे बेचैनी। मक्का से उस आने वाले ने पूछा बता तो सही उनका होलिया क्या जो बरसों से उसको होलिया बताने वाले जो बताते थे अल्लाह आगे बढ़ते हैं, सुनते ही सामने वाले वो सहाबी रसूल से रो पड़े, कहा नादान तुझे पता नहीं वो सैयदुल अंबिया है, दुश्मन है, रसूलुल्लाह का दुश्मन है, वो रसूल खुदा थे जिन पर तूने हाथ उठाया, वो नहीं जानता था, वो पहचानता नहीं था। आगे बढ़ कर के आए, अब उसने कहा इतनी बड़ी शख्सियत पर मैंने हाथ उठाया तो इस हाथ की जरूरत नहीं, तलवार लिया और अपने हाथ को मोंढे से काट दिया। जानते हैं कहा मुझे इस हाथ की जरूरत और नहीं, उसी अबू अजीजा निगरान वक़ार हज़रत शहाबुद्दीन कलयुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा। ये इसलिए मैं तुम्हारे सामने अर्ज कर रहा हूँ कि जो नौजवान अपने घर बैठ करके ये सोचते हैं कि सब अल्लाह की तरफ से आ जाए, या कभी कामों को देख कर ये कहते हैं मेरे स्टेटस के बराबर का काम नहीं है, वापस गया, ये मेरे स्टैंडर्ड का काम नहीं है, उन नौजवानों के लिए बहुत बड़ा दर्स है तो बड़ी बड़ी बात जो पूरी कायनात के आका और मौला जिनके हाथों में खजानों की कुंजियां हैं, वो किसी बगीचे में मजदूरी करके 2 खजूरें ला सकते हैं। ए नौजवानों, हलाल काम को कभी हल्का मत समझना।